Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेलबींग लेसन 19 मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 19 mental health and hygiene. So first let's see the introduction of this lesson. You may be quite aware about the term health. We generally understand it in terms of effective physical condition or functioning of the body. When we use the concept of health with reference to mind, we use the term mental health. In fact, we need both physical as well as mental health. You must be aware that body can only function well when the condition of mind is balanced and healthy. In this lesson, you will learn about the meaning of mental health and hygiene. You will also learn about the behaviors and practices which indicate poor mental health as well as those which promote good health. Finally, you will learn some effective strategies to manage time so as to get optimum results. तो अब तक आप हेल्थ के जो टर्म्स है उससे अवेयर हो चुके हैं। हम लोग जनरली जो हेल्थ है उसे हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग का जो फिजिकल कंडीशन है या फिर जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो इफेक्टिव वे में होना चाहिए। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हेल्थ को कैसे यूज़ करते हैं कि इसमें हमारा जो हेल्थ है वो फिजिकली सही होना चाहिए और मेंटली हमारा जो हेल्थ है वो भी सही होना चाहिए, जो हमारा माइंड है वो भी अच्छे से काम कर रहा होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों की सख्त ज़रूरत है। आप अवेयर होंगे कि जब आपका बॉडी सिर्फ फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, और जो आपका माइंड है वो भी बैलेंस्ड हो और हेल्दी हो, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं एंड आप अपना सारा काम सही तरीके से कर लेते हैं। इस लेसन में आप मेंटल हेल्थ और हाइजीन के बारे में सीखिएगा, पढ़िएगा और जो भी बिहेवियर्स प्रैक्टिसेस है कैसे वो आपको पुअर मेंटल हेल्थ की ओर लेके जाता है और कैसे आप उन बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस को सही करके अपने गुड हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। फाइनली आप कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज को सीखिएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको एक ऑप्टिमम रिजल्ट देगा जिसे आप मैनेज कर सकते हैं और वो आपको एक बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा कि कैसे आप मेंटली फिट रह सकते हो। Here we are going to study section 19.1 Concepts of Mental Health and Hygiene. Health is often used to refer to a state of physical, mental, social and spiritual well-being of the individual. Thus, mental health is one of the components of the broad concept of health. It is concerned with an optimum level of emotional and behavioral adjustment of the individual. It is a state of maintaining harmony or balance between the needs, desires, aspirations, and attitudes of the individual with respect to the prevailing conditions in the external environment. तो हेल्थ क्या है? इसमें वो सारे कंडीशन जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली आप अच्छे हो, एक जो इंडिविजुअल हो वो अच्छा हो, इन सभी स्टेट्स में। ये जो मेंटल हेल्थ है वो एक वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, ये हमारे हेल्थ के कॉन्सेप्ट का एक ब्रॉड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये देखा गया है कि अगर हमारा जो इमोशनल बिहेवियरल जो एडजस्टमेंट है अगर ऑप्टिमम लेवल का हो तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि आप हार्मोनी को मेंटेन करके रखते हो और बैलेंस को मेंटेन करके रख सकते हो किसके बीच में? आपकी ज़रूरत, आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षाएं, आपकी एटीट्यूड्स, ठीक है, और जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उन सबको छोड़ते हुए आप इन चीज़ को बैलेंस कर लेते हो। The term mental hygiene is closely related to mental health. We use the term hygiene to refer to keeping oneself and one's living and working areas neat and clean in order to prevent illness and disease. When we extend this concept to the domain of mind, it stands for the art of developing, maintaining, and promoting necessary behavioral, emotional, and social skills to sustain good, effective, and efficient mental health.
One can achieve this by following some basic strategies at mental and behavioral levels in one's daily life. These are as follows. तो ये जो मेंटल हाइजीन है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है? मेंटल हेल्थ से. हम लोगों ने हाइजीन शब्द को यूज़ करा है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वन सेल्फ, जो मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपने लिविंग कंडीशंस, अपने वर्किंग एरियाज़ को नीट एंड क्लीन रखे ताकि वो कोई भी बीमारियों से बचा रहे, कोई भी डिजीज से बचा रहे. जब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग नेसेसरी बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स टू सस्टेन गुड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेंटल हेल्थ. इट मीन्स क्या कि इसमें एक जो इंडिविजुअल है वो अपने माइंड को किस प्रकार से स्वच्छ रखता है, कैसे वो अपने जो भी सोशल स्किल्स, बिहेवियरल, उसका जो भी इमोशनल्स है उसको वो बैलेंस रख के उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है. और कोई भी इंडिविजुअल इसको अचीव कर सकता है कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके. ठीक है. फर्स्ट वन इज रियलिटी कॉन्टैक्ट. In order to maintain good and sound mental health, it is important to have a realistic appraisal of one's own reactions, emotions, and abilities. If you are in touch with reality, you may be able to avoid a number of disappointments and frustrations in your daily life. तो आप अपने अंदर एक अच्छा मेंटल हेल्थ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक रियलिस्टिक बनना होगा. मीन्स जो भी आपके रिएक्शंस, इमोशंस और एबिलिटीज़ है आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा. आपको रियलिटी के साथ टच में होना चाहिए. मीन्स आपको खुद का एक अलग दुनिया बनाने की ज़रूरत नहीं है. जो रियलिटी है उसी में आपको रहना है. जैसे कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स या फ्रस्ट्रेशंस होता है आपके डेली लाइफ में, आप उससे बचे रहोगे अगर आप अपने रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते हो तब. The second one is impulse control. A person with healthy adjustment would have good control over his or her behaviors and impulses. So in order to maintain good mental health, it is necessary that you should be in complete control over your impulsive behaviors. तो एक जो इंडिविजुअल या एक पर्सन है उसे हेल्दी एडजस्टमेंट करना होगा. कैसे? तो उसका जो भी कंट्रोल है अपने बिहेवियर्स और इम्पल्सेस पे उसे बनाए रखना होगा अपने कंट्रोल्स को. और एक गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके इम्पल्सिव बिहेवियर्स के ऊपर. द थर्ड वन इज सेल्फ एस्टीम. द अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. It includes all the statements about I or me expressed in terms of feelings, beliefs, and values. Thus, self-concept is sum total of all that a person is aware about his or her own self. Self-esteem is the evaluative component of self. The personal evaluation of self could be either positive or negative. A sense of personal adequacy or positive self-concept is essential for mental health. तो कोई भी बंदा है उसका अवेयरनेस होना चाहिए वन सेल्फ की ओर. इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे के बारे में होता है, उसके फीलिंग्स, उसके बिलीव्स और उसके वैल्यूज़ के बारे में. एंड दैट स्टेटमेंट इज आई और मी. ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का सम टोटल है वो क्या है? एक पर्सन जो है वो अपने सेल्फ के बारे में अवेयर है या नहीं, मतलब कि वो खुद के बारे में जागरूक है या नहीं. सेल्फ एस्टीम जो है एक इवेल्युएटिव कंपोनेंट है सेल्फ का. और जो पर्सनल इवेल्युएशन होता है सेल्फ का वो आइदर पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है. मीन्स इसमें जो एक इंडिविजुअल है वो खुद को जब इवेल्युएट करता है तो उसे खुद के बारे में या तो पॉजिटिव बातें पता चलती है या फिर निगेटिव बातें पता चलती है. और इसमें जो भी पर्सनल एडिक्वेसी का सेंस हम लोग देखते हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई बंदा अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर रहा है, अगर वो अपने आप में ज़्यादा पॉजिटिव बातें देखता है तो उसके लिए ये मेंटली सही है, मेंटल हेल्थ के लिए ये सही है. द फोर्थ वन इज पॉजिटिव थॉट्स. द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन वेदर वी डायरेक्ट आवर थॉट्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव वेज. Negative thoughts generate negative emotions such as anger, hate, jealousy, fear, and despair. The effect of such negative emotions on our mind is unhealthy. They also harm the endocrine system. Therefore, in order to maintain good mental health, we need to develop the power of positive thinking, which generates positive emotions such as
love, joy, happiness, hope, compassion, empathy, and optimism in us. Such emotions strengthen our capacity to cope with various life challenges. तो मेंटल हेल्थ का जो क्वालिटी है वो हमारे डायरेक्ट वे में हमारे पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स पे भी डिपेंड करता है. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को बढ़ता है, जैसे कि एंगर, हेट, जेलसी, फियर एंड डिस्पेयर. दीज आर द नेगेटिव इमोशंस. ठीक है. और इसका जो इफेक्ट होता है हमारे माइंड के लिए अनहेल्दी है नेगेटिव इमोशंस, और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है. इसलिए हम लोग को अगर गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है तो अपने अंदर थिंकिंग, जो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस है या हम लोग जो भी सोच विचार करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है. एंड ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस भरता है, जैसे कि लव, जॉय, हैप्पीनेस, होप, कंपैशन, एम्पैथी एंड ऑप्टिमिज्म. ठीक है. ऐसे जो इमोशंस होते हैं ये हमारी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूती देते हैं, ताकि हम अपने लाइफ चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकें. ठीक है. नाउ हियर इज एक्टिविटी फर्स्ट, एसेस योर मेंटल हेल्थ. आपको अपने मेंटल हेल्थ को एसेस करना है. तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं. It may be quite interesting for you if you are asked to assess your mental health by just responding to some statements dealing with your daily life activities. These statements are given below. Each statement is followed by three alternatives, namely agree, uncertain, and disagree. After reading each statement, please decide whether you agree or disagree with each. It may also happen that you may not be able to decide whether you agree or disagree with a particular statement. In that case, you are free to choose the alternative uncertain. In order to express your view, please encircle which will best indicate your way of thinking and behaving. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको जब बोला जाए कि आप अपने मेंटल हेल्थ को एसेस करो. आपके लिए यहाँ पे डेली लाइफ के एक्टिविटीज से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना है. ये जो स्टेटमेंट्स है वो नीचे दिए गए हैं और हर एक स्टेटमेंट में 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए आपके लिए, जो आपको चूज करना है. दैट इज एग्री, अनसर्टेन एंड डिसएग्री. आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो और इसके बाद डिसाइड करो कि आप उस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि आप इसमें डिसाइड ना कर पाओ कि आप उसमें एग्री हो या डिसएग्री हो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, तो आप वहाँ पे फ्री हो कि आप वहाँ पे एक तीसरा ऑल्टरनेटिव चूज करो, दैट इज अनसर्टेन. ठीक है. और आप अपने जो भी आपने स्टेटमेंट्स पढ़ा वो आपको बेस्ट जो डिस्क्राइब करता है वहाँ पे आप उसको इनसर्कल करो कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपको बेस्ट तरीके से इंडिकेट करता है. ठीक है. तो हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं. ठीक है. आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ माई लाइफ. आप अपने लाइफ से संतुष्ट हो और खुश हो. आप एग्री करते हो, अनसर्टेन हो या डिसएग्री करते हो, ये आपको बताना है. द सेकेंड वन इज माई लाइफ इज़ वेरी हैप्पी. जो मेरा जीवन है बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा है. थर्ड वन इज इवन वेन आई एम विद द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली आई फील लोनली. मैं अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली, जो भी मेरे परिवार के सदस्य, मैं उनके साथ रहते हुए मैं अकेला महसूस करता हूँ. द फोर्थ वन इज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई एबिलिटीज़. मेरे पास जो भी योग्यताएं हैं मैं उसके प्रति कॉन्फिडेंट हूँ, विश्वास रखता हूँ. फिफ्थ वन इज आई हैव नॉट बीन एबल टू अचीव एज मच एज आई वॉन्ट टू. मैं जितना अचीव करना चाहता हूँ मैं उस चीज़ को अचीव करने में एबल नहीं हूँ. Sixth one is I am not as adequate and competent as others are. मैं उतना adequate या competent नहीं हूँ जितना कि दूसरे हैं. Seventh one is I am very intelligent and competent. मैं बहुत ज़्यादा intelligent और competent हूँ. Eighth one is I do not want to mix up with others. मैं दूसरों के साथ mix up नहीं होना चाहता हूँ. The ninth one is पीपल आर जनरली सेल्फिश. जो लोग होते हैं प्रायतः क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं. टेंथ वन इज आई हैव नो जस्ट फॉर लिविंग. मेरे पास कोई भी जस्ट नहीं है लिविंग के लिए. द 11th वन इज आई जनरली ट्रस्ट पीपल एंड हैव नो प्रॉब्लम इन गेटिंग अलॉन्ग विद दे. मैं जनरली लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ और मैं उनके साथ इजिली रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. 12th आई एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वेलबींग. मेरे पास एक्सपीरियंस है वेलबींग होने के सेंस में. 13th आई गेट एनफ लव एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम माई फैमिली एंड अदर्स. मैं इनफ लव और सेटिस्फैक्शन अपने फैमिली और दूसरों से प्राप्त करता हूँ. एंड द 14th वन इज
I am generally able to solve my problems when I encounter them. I do not remain in conflicting situations. मैं अपने प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करने में एबल हूँ, इजीली मैं उस चीज़ को सॉल्व कर लेता हूँ और मैं उस सिचुएशंस में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता हूँ. ठीक है. एंड द 15th एंड द लास्ट वन इज आई हैव नो गोल इन लाइफ, लाइफ जस्ट ड्रैग्स ऑन. मेरे लाइफ में कोई भी गोल नहीं है, बस मैं अपने लाइफ को खींचता चला जा रहा हूँ. एंड हियर इज की आफ्टर गिविंग योर व्यू ऑन ईच स्टेटमेंट, add the score of all the alternatives you have chosen. The total of all the 15 items is your mental health scores. आपने हर एक स्टेटमेंट को पढ़ा. अब हर एक स्टेटमेंट के लिए आपका यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है. ठीक है. और अब आप उस स्कोर को ऐड करो और देखो कि आपके कितने स्कोर आए हैं. ठीक है. अगर आपके स्कोर 36 to 45 आया है तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो गुड है. अगर आपके स्कोर 26 to 35 आया है, इट मीन्स आपके मेंटल हेल्थ फेयर है. एंड 15 to 25 है तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर है. ओके. नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 19.1. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.